হ্যাঁ না না এখন बिहारवान की चलो बिहारी जी की जय हो। দেখি দেখি ধরা যাচ্ছে ধরা যাচ্ছে। জয় हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राव भैया की, श्री राम भैया की, मधुमंगल सखा की। ओ कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाले टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ। ओ कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली में, कन्हैया फिर से
चंद्राय सपनी करी उड़ल किशोराय ब्रज भमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपाद सद्गुरुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्गेर श्रीचरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तदंतर उपस्थित चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज श्री परिव्राजक महाराज श्री जनार्दन महाराज श्री हरिजन महाराज श्री नरसिंह वैष्णवेर अनुगत्ये আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত বিহার বন শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল গোচারণ ভূমি দেখুন গরুগুলো ছুটে 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 আসছে দেখুন ওখানে গোশালা আছে দেখুন ছেড়ে দিয়েছে গোশালা দৌড়ে যায় তো দৌড়ে দৌড়ে ছুটে ছুটে আসছে গরুগুলো দেখুন কৃষ্ণের সময় এরকম খুব দৌড়ে দৌড়ে গরুগুলো আসলো এরকম দেখা কিতনা সুন্দর দৌড়তে आ रहे हैं सब कृष्णेर गोचारण लीला की जय बिहार वन की जय। बस এখন বসুন এখানে গোশালা আছে বসুন এখন এখানে গরু দেখা যায় না এখন কোথাও সব তো এটা দেখবে ছবিও দেখবে
জয় অনুদিন, জয় অনুদিন। ব্যাস হয়েছে, এখন আসুন। এবারে চলে আসুন। বেশি দিন সকালে চলে গেছে এখানে, দেখুক বাবা কত গরু এখানে অনেক আছে। এ কীর্তন করো, আশিস মহামন্ত্র করো, লো মাহিল মহামন্ত্র করো। লো মহামন্ত্র করো। হরিদেব ইধার ঘুমো তো, লো গরু আসা শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ। আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমা অভিমুখে যেখানে উপস্থিত হয়েছি বিহার বন, কৃষ্ণের সকল গোচারণ ভূমি, আর এখানে বিহার কুণ্ড। এখন এখানে সর্বপ্রথম
শ্রীমান ভারতী মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করাবেন। ভারতী মহারাজ কে খুলে নিয়েছে? খুলে নিয়েছে। হরে কৃষ্ণ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমো। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম পদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নান্নে গৌরতিষ্ঠে নমো। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধ জগৎপতি গোপীশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাচারী গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদ পদ্ম নিত্য নীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টতর শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত তীর্থ গোস্বামী পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত মাধব গোস্বামীর চরণে শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম। তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত জনার্দন মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত নরসিংহ মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত হরিজন মহারাজ এবং সমস্ত তীর্থগণ এবং উপস্থিত বৈষ্ণবী গৌর ভক্তবৃন্দ সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন। গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে আমরা উপস্থিত হয়েছি, স্থানের নাম হচ্ছে বিহার বন। এই এতগুলো বনের মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, 12টা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু 12টা বনের মধ্যে আমরা কোনো বৃন্দাবনের মতো দেখতে পাইনি। এই বিহার বনটাই হচ্ছে বৃন্দাবন। কেন এখনো ময়ূর দেখা যায়, এখনো শাখে পাখি আছে, এখন এখানে গোধূর আছে, এখন এখানে বৃক্ষ আছে, কমাল বৃক্ষ আছে, সব এখানেই বর্তমান। সেই জন্য বৃন্দাবন দেখলে এখানেই দেখা যায়, হ্যাঁ বৃন্দাবন যে ছবিটা সেই বৃন্দাবনটা এখানে আছে। আমরা যে স্থানে এসেছি এই স্থানে গোচারণের সময় শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গলকে নিয়ে ভগবান এখানে আসতেন, লীলা করতেন। এই যে কুণ্ডটা আছে, কুণ্ডর লীলা আছে, এখানে সবাই সব লীলা করতেন। এক সময় রাধারানী কৃষ্ণ বলল, আচ্ছা তুমি তো সব অসুর মারতে পারো, তুমি তো অনেক কিছু বলতে পারো, তুমি তো মল্লযুদ্ধ করতে পারো, কিন্তু তোমার নৃত্য তো দেখি না। ও এক জায়গায় নৃত্য করেছো, কালিয়া নাগের মাথায়তে নৃত্য করেছো, এখন আমাদের নৃত্য দেখাও। কৃষ্ণ তো সরাসরি এরকম নৃত্য করে না, নৃত্য দেখাতে পারছে না। ঠিক আছে, তোমাকে নাচ শেখাবো। এইখানে বললো তোমাকে নাচ শেখাবো। তাহলে নাচ শেখাবে কে? রাধারানী। রাধারানী কিন্তু হাতে একটা ছড়ি নিয়েছে, মান অপমান ছড়ি নিয়ে এবারে নাচ শেখাতে শুরু করেছে। প্রিয় নাচন শিখায়তে রাধা প্যারি, প্রিয় নাচন শিখায়তে রাধা প্যারি, মান গুমান লোক নিধারি, মান গুমান লোক নিধারি, প্রিয় নাচন শিখায়তে রাধা প্যারি, মন্থর গতি জবহি
অন্তর্গতি জবহি দরমত কুঞ্জ বিহারী দরমত কুঞ্জ বিহারী প্রিয় নাচন শিখায়তে রাধা প্যারি। এই যে রাধারানী তিনি কৃষ্ণকে নাচ শেখাচ্ছেন, মান গুমানের ছড়ি নিয়েছেন। যখন নাকি নাচের একটু অসুবিধা হয় তখন ওই ছড়ি দেখায়। তারপর বলছে খুব দ্রুত গতিতে নাচছে, বলছে ধীর গতি মন্থর গতি, মন্থর গতি জবহি ডরমত একদম ভয় করে, তুমি ভয় করো না, নাচতে থাকো। এই যে এখানে রাধারানী কৃষ্ণকে নাচ শিখেছে, এই যে বিহার বন। আবার এখনই দেখলেন যে গোধূলিগুলো দেখলেন, এই বনের মধ্যে অসংখ্য গরু আছে। আবার যদি এই বাইরে গিয়ে একবার যদি রাধে রাধে বলেন আর হাতে তালি জানা রাধে রাধে বলেন, সমস্ত গরুগুলো ছুটে আসবে, আপনি দিশাহারা হয়ে যাবেন, পালাতে রাস্তা পাবেন না। এখনো সেই মানে সেই এখনো মন্ধুর বৃন্দাবনে এখনো সেই বাঁশি বাজায় দেখি, এখনো সেই বৃন্দাবনে এই লীলাগুলো এখনো অবস্থান করছে বিহার বনে। বিহার বনে সমস্ত গরুগুলো যখন যখন দুপুর হয়ে যেত, ক্লান্ত হয়ে পড়তো, গরমের চোটে, তখন নাকি এই গরুদের সব বলতো নিরি 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 চু 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 তিরি 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 তিরি, মানে তোমরা সবাই এসো, নিরি 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 চু চু চু, তোমরা জল খাও, আবার তিরি 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 তোমার তীরে উঠে এসো। এই কৃষ্ণের কথা অনুযায়ী এই কুণ্ডে সবাই জল খেত, সবাই এখানে লীলা করত। এই যে বিহার বন, বিহার কত রসের, এখানে মান নেই, অভিমান নেই, এখানে আনন্দ, শুধু প্রেমের আনন্দ। এই প্রেমের লীলা রাধা কৃষ্ণ এখানে সর্বত্রই লীলা করেছেন। এখানে লীলাস্থলী, এই যে বৃন্দাবন, সমস্ত বৃন্দাবনকে বিকৃত বন হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো এই বিহার বন বনেই রয়ে গেছেন বৃন্দাবন। বিহার বন কি বাঞ্ছা কল্পতরুবস্য কৃপা সিন্ধু ভজেই বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এখানে মায়েরা কি আজকে বিরিয়ানি খাইবে, ওগুলো কিছু দিচ্ছে না মায়েরা। Now Satya will speak here in English. Satya Prabhu English. হরিদাস ইংলিশ বলবে না, হিন্দি বলবে। ও ইংলিশ বলবে বলেছে তোমাকে, লা যাও, ও হিন্দি বলবে। कंफर्ट मुझे भाषा में कंफर्ट लगती है ना, ट्रांसलेशन करता है इंग्लिश में, किंतु हाँ वो कर सकता हूँ, लेकिन आजा आजा हिंदी बोले। हाँ हिंदी बोलो, वो अब इंग्लिश बच्चा का आखिर बोलना पड़ेगा। पहले से पानी बता। गुरुवे गौरी चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति वेदांत शिला माधव गोसाई महाराज जी के चरणों दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ने शिक्षा गुरु पुदबासी परमेश्वरी प्रभु जी के चरणों दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवी के चरणों में यथा दंडवत प्रणाम। गुरु वैष्णव के अनुगत में परिक्रमा करते करते आज हम लोग जिस स्थान पर पहुंचे हैं इसका नाम है बिहार वन। जैसा कि हम लोगों ने अभी हम सुबह परिक्रमा में आए तो सबसे पहले हमारे आगे 2 बसें थी जो उतरे थे। कुछ लोग खेलन बिहारी का मंदिर कुछ लोगों ने देख लिया, सब लोग नहीं जा पाए। तो खेलन बिहारी यहाँ पर है, उस स्थान का नाम है खेलन, जो खेला दूल्हा लीला इसको कहते हैं। या कृष्ण के साथ जब सखा और कृष्ण सब लोग आते हैं गोचारण के लिए, तरह तरह के खेल खेलते हैं, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हैं, कंधे से उतारते हैं, कभी कृष्ण इधर छुप जाते हैं, कभी सखा, इस तरह की लीलाएं करते हैं।
नाम के अनुसार ही जैसा हम लोग समझ सकते हैं, खेलन वन, खेलन माने प्लेइंग एरिया और वन माने फॉरेस्ट, जहां पर सखा लोग खेलते हैं, इसलिए उसका नाम खेलन वन। एक समय की बात है, ब्रज में हल्ला हो गया कि सबसे बड़ी सती सावित्री कौन है, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। तो जटिला और कुटिला आई कि जटिला कुटिला से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। और जो राधा रानी है ना, देखो दूसरे पुरुषों के साथ घूमती है और इस तरह से है, कृष्ण के साथ घूमती हैं, छुप छुप के मिलती हैं, उनका कृष्ण के साथ विवाह भी नहीं हुआ है, तो राधा रानी जो है पतिव्रता नहीं है। तो ठीक है, अब कृष्ण इस चीज का प्रमाण देंगे कि कौन पतिव्रता है और कौन नहीं है। तो कृष्ण ने अस्वस्थ लीला करी, कृष्ण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तब योग माया पौर्णमासी देवी ने पूरे ब्रजमंडल में कह दिया कि यदि कोई भी पतिव्रता आकर और जमुना से इस 1000 एक घड़े में छेद है 1000 और उस घड़े से पानी लाके कृष्ण के ऊपर डाले तो कृष्ण स्वस्थ हो जाएंगे। अब सब में खलबली मच गई, यशोदा मैया नंद बाबा सब सोचने लगे पौर्णमासी जी ने कैसी शर्त रखी है, अब इतनी पतिव्रता कौन होगी जो 1000 छेद है उसमें घड़े में और उसमें पानी लेके आएगी। तब जटिला कुटिला को अभिमान था कि हमसे बड़ा पतिव्रता कोई है ही नहीं, तो जटिला कुटिला दोनों घड़ा लेके गई, बेटी और माँ है दोनों, तो गई और घड़े में जैसे पानी भरा यमुना से वो तुरंत ही निकल के एक बूंद भी रुकी नहीं। परम गुरुदेव उसमें लिख रहे हैं किताब में, तो वहां की वहीं से गायब हो गई, वो दोबारा वापस आए भी नहीं मिलने के लिए। तो बोले अब क्या होगा, तब राधा रानी को वो घड़ा देके और पानी भरने के लिए जब भेजा गया तो राधा रानी उस घड़े से पानी लेके आई और कृष्ण को स्नान कराए, इससे कृष्ण पुनः स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार की लीला इस खेलन वन में हुई। अब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर बिहार वन पे। तो बिहार वन में कहते हैं, जैसे नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, बिहार जहाँ पर जल विहार ले लो और कीड़ा विहार, तरह तरह के खेला धूला जहाँ हुए वो बिहार वन। देखो नौका भी रखी हुई है वहां पर, यहीं पर इन्हीं स्थानों पर कृष्ण का सखाओं के साथ भी हुआ है और सखियों के साथ भी नौका विहार भी लीला हुई है। 5 मिनट में हम लोग कृष्ण की एक नौका विहार लीला का वर्णन करते हैं। अभी तक कृष्ण ने कभी सखियों के साथ नौका विहार नहीं किया है, सबसे पहली नौका विहार लीला है। आपने बुझते पारे बंगला ही बोलो सब समझ रहे हैं ना। हाँ बात। तो राधा रानी और सखियों के साथ कृष्ण की पहली नौका विहार लीला। कहते हैं कि अब सखियां और राधा रानी किसी कुंड के या यमुना के तट पर हैं और देख रही हैं उनको कुंड या यमुना पार करनी है। अब पार करने के लिए कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही है, ना कोई नौका वाला दिखाई दे रहा है। तो ललिता विशाखा बहुत चतुर है, ललिता विशाखा ने दूर दृष्टि डाली और देखा कहीं दूर में एक टूटी फूटी नाव दिख रही है और उसमें जो नाव वाला है ना वो लेटा हुआ है। तो राधा रानी की सखियां आवाज देती हैं, ए नाव वाले, ए नाव वाले। अब कृष्ण तो स्वांग रचा रहे थे, सोने का सो थोड़ी रहे थे। तो कृष्ण आंखें खोलते बोलते हैं, देखते हैं, हाँ, फिर आंखें बंद कर ली। तो राधा रानी से ललिता विशाखा, राधे जो तो देख के तो टेढ़ो है, जाने सुन के हमारी बात को अनसुनी कर दी, अब बताओ हम क्या करें। बोले फिर से बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, शायद प्रेम से आ जाए, ग्वाला है ना। तो अच्छा ठीक है, ललिता विशाखा ने फिर आवाज दी, प्रेम से बुलाया, ए नाव वाले, ए नाव वाले, हम लोग को नाव नदी पार करनी है, जरा यहाँ आ जाओ। तो कृष्ण अपनी टूटी फूटी नाव ले गए और किनारे पे आ गए। अब कृष्ण कह रहे हैं, देखो ये जो नाव है ना मेरी, ये सवारी ढूंढ के लेना है, जो मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवाई है, मैं खुद जहां विहार करता हूँ और जहां में देखो बैठने की जगह मेरी है और एक सखी तुम्हारी आ सकती है, और तो कोई आए हो ना, बताओ तुम्हारी इच्छा है तो बिठा दो। तो ललिता विशाखा कह रही है, जाको मन कोई ठीक ना लग रहा है। तो राधा रानी कह रही, देख रही हो सखियो, तुमने जहाँ बुला लियो। और इस समय कृष्ण अपने सिर से पाग बांधे हुए, मतलब पगड़ी बांधे हुए हैं। राधा रानी और सखियां उनको पहचान नहीं पा रही है कृष्ण। तो उन्होंने कहा, देखो सखी, जाको मन कुछ ठीक ना लग रहा है, मैं अब क्या करोगी, पार कैसे करोगी। तो ठीक है बैठ जाओ। तो राधा रानी जैसी चढ़ी, मतलब और उसमें सब सखियां दूर दूर कूद काद के सब लटक गई, कोई नाव में टूटी फूटी।
अब नाव तो हिलन लगी। अगले कृष्ण बोले देखो मैंने तुमसे कही ना एक ही सखी जाएगी, सब बैठोगी तो नाव डूब जाएगी, अब देखो हिल रही है, अब क्या करो। तो ललिता विशाखा करेंगे सुन ले मान लेना लाला, थोड़ी देर की तो बात है। तो बोले ठीक है बैठ जाओ। सब बैठ गई। अब नाव बिल्कुल जरा सी चली। अब कृष्ण फिर रुक गए। बोले अब क्या है वो? बोले देखो मैं ना बहुत देर से यहाँ पे, मैं बाबा ने घर से भेजो, मैं यहाँ पे हो तो मैं ना भूख लग रही है, बहुत देर से कुछ खाए हो ना तो चक्कर से भूख लगी है, कुछ खाने को है तुम्हारे पास दो दो। तो बोले अच्छा जो मक्खन और दही लाए हैं जाई के खा ले तू, और क्या करे हो। तो ललिता विशाखा ने दही की मटकियां रखी थी। बोले देखो मैं ना छोटे से लाला हूं बाबा को, मैंने आज तक अपने हाथ से कभी ना खाए हुए। तो बोले ठीक है कौन खवाए वो? ललिता विशाखा आगे बढ़ी, ले तू हमें खिला देते हैं मुंह में। तो बोले ना ना जो तुम्हारी सखी है ना गोरी सी, जाके हाथ से खाऊंगा। तो कह रहे हैं कृष्ण कह रहे अच्छा। राधा रानी कह रही है देखो सखी मैंने तुमको पहले ही कही ना जाको मन ठीक ना, अब देखो जो कह रहे मेरे से खिलाने को, जो अनजान बालक कौन को है मैं जानू ना तानू ना, जा कैसे खिलाऊं अपने हाथ से। तब ललिता विशाखा कह रही है किशोरी जी अब मान जाओ ना, क्या करोगी बताओ, बीच में फंस गए हैं, ना होता है मैं ना होता है मैं, अब तो खिलाना भी पड़े वो। तो अब राधा रानी अपने हाथ से मक्खन खिलाने लगे। कृष्ण फिर जब मक्खन खा रहा तो मुंह टेढ़ो कर ली। बोले ना ऐसे खाऊंगा ना, जो सखी तुम्हारी खिला रही है ना पूरी प्रसन्नता के साथ, जो तो मुंह टेढ़ो कर रही है ऐसे खाऊंगा ना, पूरी प्रसन्नता के साथ खिलाएगी, मानो मैं अच्छे से जानती है तब खाऊंगा। ललिता विशाखा कह रही है राधे जी अब मान जाओ ना, जब इतना करो तो इतना और सही। ठीक है। अब राधा रानी ने बहुत खुशी के साथ वो मक्खन खिला दिया। अब हो गई बात यहाँ खत्म। फिर नाव थोड़ी सी चली, फिर बोले देखो अब मैं ना एनर्जी मेरी खत्म है गई, जो मक्खन खा लिया मुझे आलस आ रहा है, वह चक्कर से मुंह पे नाव चलने की ना। ललिता विशाखा कह रही है नाव वाले तू अब बहुत है गई, अब ज्यादा मत कर बेटा मान जा। तो बोले ना ठीक है तो ले जाओ अपने, चला के मैं तो कूद के चले जाऊंगा, तैरना आता है, अगर तुम्हें तैरना आता तो चली जाओ। अब ललिता विशाखा फिर राधा रानी के पास अब क्या करोगे? बोले तुम्हारी सखी है ना गोरी सी, जाको मेरे सामने बिठाओ, तब नो एनर्जी मिलेगी, जहां से शक्ति मिलेगी तब मेरी नाव चलेगी। ठीक है। तब जब हमारे परम गुरुदेव कहते थे जब परिक्रमा होती है ना ब्रजमंडल नवद्वीप परिक्रमा, तो ब्रह्मचारी में एनर्जी मिलती है, पता है कहां से? परम गुरुदेव बोलते थे हमारे। एक है इसमें परम गुरुदेव नहीं बोलते थे। तो हम लोग कहाँ थे अभी? डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा हैं कुछ लोगों से। सख्य रस की लीला, ये मधुर रस वाले है ना। हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ सामने ठीक है कि सखी को हमारे सामने बिठाओ। तो राधा रानी से ललिता विशाखा ने फिर विनय करी और आगे सामने बैठ गई। अब राधा रानी मुंह घुमा के बैठी है, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, पूर्णिमा की रात है। अब किशोरी सामने बैठी है लेकिन मुंह टेढ़ो करके बैठी है घूम उगा के। तो अब किसने थोड़ी नाव चलाई, फिर रुक गए। बोले लाला अब क्या रहे हो? बोले देखो ये तुम्हारी सखी बैठी है ना, अब जैसे मुंह टेढ़ो करके बैठी है तो जैसे मुझे शक्ति थोड़ी मिलेगी, जब मेरे सामने बैठे और मेरी तरफ देख के मुस्कुरावे तब मुझे शक्ति मिलेगी ना, तभी तो नाव चलेगी। बोले अच्छा ठीक है। अब राधा कह रही है देखो मैं तुम्हारी अब बात ना मानूंगी। ललिता विशाखा कह रही है देखो राधे अब मान लो ना, और कोई उपाय ना है, अब यहाँ से जाए तो जाए कैसे, अब तो फंस गए हैं बीच में। अच्छा ठीक है। राधा रानी फिर सामने बैठ गई हैं और जबरदस्ती हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो अब नाव थोड़ी सी चली, आधे से थोड़ा पार करी है, फिर रुक गई। अब ललिता विशाखा गुस्सा आ गई। बोले नाव वाले अब कहाँ गए हो? बोले ऐसे है ना जो नाव में थक गए, देखो छोटो से लाला, अगर ब्रज में कहोगे पता चल गई ना कि मेरे से तुमने नाव खिंचवाई है तो मेरे बाबा तुम्हारी खैर ना है, समझ लियो कि मैं अपने बाबा को खिलाओ तो लाड़ा में बैठा हूं, कोई ना उनको, और इतनी परिश्रम से करा रही हो ना, सही ना है कर रही हो तुम लोग। अब बात यह है जो नाव चलना रही है, अब नाव चलेगी तब मोहना एक मंत्र आता है, वो मंत्र यदि मैं कहूँ कान में फूंक दूं तो नाव अपने आप चलने लगेगी। ललिता विशाखा आगे बढ़ी, बोले जल्दी बोलना मंत्र, इतनी देर क्यों कर रहा है? बोले हट तुम्हारे लिए थोड़ी है वो मंत्र, जो तुम्हारी सखी है ना जाके कान में बोलूंगा। अब राधा रानी कह रही देखो मैं तुमको पहले कही ना फंस जाएंगे आगे चक्कर में, अब फंस गया बताओ क्या करें। तो किशोरी जी मान लो इतनी सी और
तो बोले देख दूर से बोलिए मंत्र, कान के पास जाके मत बोलिए। बोले हाँ मैं दूर से बोलूंगा कोई ना। बोले ठीक है। राधा रानी बैठी है, कृष्ण राधा रानी के कान के पास अपना कान लाए, मुख लाए मतलब ना मुख लाए बताइए नाव में फंस गया है। तो अब किशोरी जी बैठी हैं, कृष्ण ना मुख लाए उनके कान के पास और कह रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावनेश्वरी। राधा ने देखा ये कौन बोल रहा है, आवाज तो जाना पहचानी लग रही है कुछ। तो बोले तुम कौन हो? बोले किशोरी जी पहचानो ना। बोले ना। तब कृष्ण ने अपनी जो पगड़ी थी और खोल दी। राधा रानी ने कृष्ण का दर्शन किया, एक दूसरे का बहुत सुंदर मिलन हुआ। सभी सखियां ताली देके कीर्तन वाद्य यंत्र सब बजने लगे और बहुत सुंदर नौका विहार होने लगा। तो नौका विहार लीला की इस प्रकार से इन स्थानों पर हम लोग आए। इस बिहार वन में ऐसी लीलाएं जो राधा कृष्ण की हुई हैं, वो लीला स्थलियां आज भी हमारे समक्ष कहीं ना कहीं प्रस्तुत हैं। हमारे गुरुवर्गों की कृपा से हम लोग इन स्थानों पर आते हैं। तो यही प्रार्थना करते हैं गुरुवर्ग से, उन लीला स्थलियों का कभी हमारे हृदय में भी एक अंश कभी स्फुरित हो तो हमारा जीवन धन्य हो। एक एक वाणी को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलोगे कि सबका बोलेगा? बोलो कार नहीं रहा है। Hare Krishna. By costless march of Guru and Vaishnavas, I assembled called Biharban. Biharban, Sri Krishna during cow grazing is coming with all his pasakas and in so many time of pastimes. There are plenty of grasses, plenty of water. Krishna coming cow grazing, this is an excuse. The main target of Krishna be with gopis to meet with gopis freely. This is his inner mood. But why coming? Because go means cow, go means calf, go means mother earth, go means senses, go means gop, go means gopi. Who is nourishing and bringing pleasure to everyone is Govinda. And he is doing cow grazing. Go charan, go means all these things. So he is giving pleasure to Mother Earth. How come he has so many auspicious marks under his soul? By that giving pleasure to them. And mother cow and calf all getting pleasure seeing Krishna. Why Krishna in Braj? Any cow not giving any milk? The messenger came to Nanda Bhavan. Or Brajraj Nandan, today cow is not giving a single drop of milk. He had to come, otherwise there is no milk in Braj. So as soon as Krishna come, then giving milk. So first Krishna starting to calf grazing. 1 year later, they became grown up cow. So they are not going with other cow milkmen. So Krishna has to graze cow and cow, both calf and cow. Coming Krishna here with the sakhas, they make free the all cows. And what they are doing? Somewhere there are swans, they are coming and they are moving this way or that way. And Krishna and sakhas, they are moving like this way or that way. Sometimes the sakhas, they are jumping like frog. All are doing this, and what frog is making sound, they are making sound and going ahead. Sometimes they saw that monkeys are sitting, baboon are sitting, their tail is hanging below. So Krishna and sakhas, they grab the tail of baboon or monkey, then monkey became scared, jumping here and there. They are also holding the tail, going here and there. Sometimes birds are flying in the sky. Their shadows coming on the earth. Seeing that they want to catch, going here and there. In Bhagavad in one chapter, they say very nice way. So how they are Krishna and sakhas being beheld. And here both pastime. Sometimes with sakhas, sometimes with sakhis. How is that described very nice way. From here we'll go to now Chirghat. Going Chirghat, there are so many confidence saying the first time took place, how they did Kaptaini Brat,
and what is took place will describe the going there. Hare Krishna. Mridanga, Karatal. का सर उठिए नील। आप लोग को अपने सामान उठा करके बस में चले। एक तो पागली माँ এখানে সদর যাচ্ছিল। ওই পাগলি গাকে বলতে কাপড় সব ভিজা। তুমি সিট ভিজাবে না বাসে। খুব তো সতর্ক কাটলে দেখলাম। আদিবে হরি বল রাধে জয় গৌর প্রেমানন্দে